Hello students, after completing the intro part of exercise 2.1, we are proceed to exercise 2.1. In intro part of exercise 2.1, we are discuss ordered pair, product of two sets, products of three sets. Now we start exercise 2.1. Students, as you see on the board, we write some questions. Let us start question number first. If x upon 3 plus 1 and y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 and 1 upon 3, find the value of x and y. Student, in equality of ordered pair, we are discuss and first elements of first order pair is equals to first element of सेकेंड ऑर्डर पेयर. ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी. हमने आपको बताया था a1 b1 is equal to a2 b2 if and only if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2. ये चीज हमने डिस्कस की थी. तो यहां से इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है x अपॉन 3 प्लस 1, x plus 3, x upon 3 plus 1 is equal to 5 upon 3 and y minus 2 upon 3 is equal to 1 upon 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं और उधर ट्रांसफर कर लेते हैं. x upon 3 is equal to 5 upon 3 minus 1 and solve it. x upon 3 is equal to 2 upon 3 and x equal to 3, x equal to 2. इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. और यहाँ से देखते हैं माइनस 2y3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए. y equal to 1 upon 3 plus 2 upon 3 माइनस प्लस हो जाएगा and y equal to 1 upon 3 plus 2 upon 3 equal to 3 upon 3, I mean 1. तो x की वैल्यू कितनी आई 2 and y की वैल्यू कितनी आई 1. x equal to 2 and y equal to 1. ये आंसर हो गया. Now student, question number second. If the set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5, find the number of elements in A cross B. Cartesian product of set A and set B. ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है इसमें. Given that number of elements in set A कितना है, इसको कैसे लिखते हैं NA. number of elements in set A is equal to 3. set B given है तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि number of elements in set B कितने हैं 1, 2, 3. इसको काउंट करेंगे तो number of elements in set B equal to also 3. We find number of elements in A cross B. हमें क्या फाइंड करना है, number of element in A cross B. ठीक है, we know that n A cross B is equal to n A into n B. ठीक है, ये चीज हमने आपको बताई थी. The number of element in A cross B is equal to n कितना है 3, ये गिवन था. And NB ये हमने काउंट कर लिए 1, 2, 3 elements in set B is now here 3. 3 3s are 9. The number of elements in A cross B is equal to 9. ठीक है. Now move to question number third. If set G containing 2 elements 7, 8, H, 5, 4, 2, find G cross H and H cross Z. We find Cartesian product of two sets G and H. First of all we find G cross H. G में कितने एलिमेंट्स हैं 2, 7 and 8 into 5, 4, 2. ठीक है स्टूडेंट, we find. हमें क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे सेट H के तीनों एलिमेंट्स के साथ. उसके बाद इसके जो दूसरा एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों एलिमेंट्स का.
इस पर ध्यान रखें, ऑर्डर फिक्स होना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। 7,5 लिखेंगे, इसको 5,7 नहीं ले सकते। नाउ G क्रॉस H इज इक्वल टू 7 का 5 के साथ कितना होगा 7 5, 7 का 4 के साथ 7 4 एंड 7। अब 8 का 8 5 8 4 एंड 8 2 8 2। ठीक है, ये हो गया। पहले 7 का करेंगे, तीनों के साथ पेयर बनाएंगे, उसके बाद 8 का पेयर बनाएंगे। इसमें ध्यान रखिए, फर्स्ट एलिमेंट्स इन फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड प्लेस। ये क्या हो गया G क्रॉस H। नाउ H क्रॉस G, डू योरसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is state whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, we write the given statement correctly. क्वेश्चन नंबर 4 में कई पार्ट दे रखे हैं, हमें इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है उसको मैं ट्रू करके लिखना है। फर्स्ट पार्ट, if set P contain two elements M N and Q and M, then P cross Q is equal to two ordered pair Mn and Nm। हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो समझते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P। सेट P में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P कितने हैं? 2। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q कितने हैं? ये भी 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कितने होंगे? 2 2 जा 4। और यहाँ पे कितने हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये कैसा है? ये फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये फॉल्स हो गया। इसको ट्रू क्या हुआ? अब देखते हैं। P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या हुआ? Mn क्रॉस Nm। मल्टीप्लाई कीजिए, पहले हमें m का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। क्या होगा? Mn, m का m से करेंगे, mm, फिर सेकेंड एलिमेंट का करेंगे n का इन दोनों के साथ। क्या होगा? Nn एंड Nn। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर होगा। द सेकंड पार्ट, इफ A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to set A and Y belongs to set B. We find क्या? A cross B। ठीक है, हमने आपको बताया था, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A क्रॉस B में बताया था A क्रॉस B is equal to AB such that A belongs to A set first और B belongs to set second। इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट एलिमेंट्स इस सेट फर्स्ट से बिलोंग करता है एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। वही चीज ने लिखा है x y is the order pair and x belongs to first set, and first element belongs to first set and second element belongs to second set। Now this statement is true। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू। थर्ड, if set A contains two elements 1 2, set B 3 4, then A cross B intersection 5 is equal to 5। तो फर्स्ट you will find B intersection 5। इसमें किसी भी सेट का जब 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो 5 होगा। B क्या है? 3 4 एंड 5 क्या होता है? नो एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। ठीक है, नाउ B इंटरसेक्शन 5
विल बी 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो 5 हो गया। और जब इसका a के साथ प्रोडक्ट करेंगे, a क्या है 1 2 एंड 5 नो एलिमेंट्स, तो 1 का a किसके साथ बनाएंगे, बनेगा नहीं। 2 का किसके साथ बनाएंगे, नहीं बना सकते। तो इस कंडीशन में इनका दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 5, और ये क्या बोल रहा है दिस इज आल्सो बी 5। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो बी ट्रू। Now student, question number 5th. Student, question number 5th is, if set A equal to -1 1, find A cross A cross A. Cartesian product of 3 sets. First, we will find A cross A. A cross A is equal to -1 1 क्रॉस -1 1। ये जो -1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1। अब 1 का करेंगे दोनों के साथ 1 -1 एंड 1 का 1 के साथ 1 1। ठीक है, ये क्या हो गया A क्रॉस A। नाउ A क्रॉस A क्रॉस A, ये चीज हम फाइंड कर चुके हैं, ये चीज हम फाइंड कर चुके हैं ये। अब इसका हमें प्रोडक्ट करना है इसके साथ -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 मल्टीप्लाइड -1 1। देखिए पहले इस ऑर्डर पेयर का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका करेंगे इस तरीके से हमें सबके मल्टीप्लाई करने हैं। -1 -1 -1 इसका हो गया। अब इसका 1 के साथ -1 -1 1। अब सेकंड वाले का -1 1 -1। अब इसका करना है सेकंड वाले के साथ -1 1 1। ठीक है, नाउ थर्ड 1 -1 1 1 1 -1, इसका -1 के साथ -1 हो गया। 1 -1 का 1 के साथ 1 -1 का 1 के साथ। नाउ लास्ट 1 1 का पहले -1 के साथ करेंगे, 1 1 का -1 के साथ, ये 1 1 -1 हो गया, 1 1 1 1 -1 एंड नाउ 1 1 का 1 के साथ करेंगे 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो ये आप अपने आप ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, काफी इजी क्वेश्चंस है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, पहले हमें A क्रॉस A फाइंड करना है, A का A के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद A क्रॉस A का मल्टीप्लाई फिर से A के साथ करना है, देन वी विल फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, इसको क्या बोलते थे हम, ऑर्डर पेयर, और ये ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, if A cross B is equal to AX AY BX BY, find A and B, find set A and set B. By definition of Cartesian product of two sets A cross B, A cross B is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B. Means first element of set, first element is belongs to first set and second element belongs to second set. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें A belongs to first set, this A belongs to first set, B belongs to first set, and second element belongs to second set, and A belongs to A.
ये सेम है, B belongs to set A, and second element X belongs to second set, and second elements Y belongs to set B. ठीक है, then set A क्या होगा, A B, and set B X Y. जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट फर्स्ट से बिलोंग करेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेंगे. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. लेट A containing two elements 1 2, B 1 2 3 4, C 5 6, D 5 6 7 8. Verify that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C, and second A cross C is a subset of B cross D. Now LHS A cross B intersection C. First we will find B intersection C. B C ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, तो B इंटरसेक्शन C क्या मिलेगा हमें, देखिए B इंटरसेक्शन C इज B और सेट C में क्या कॉमन है, नथिंग इन कॉमन, तो क्या हुआ 5. ठीक है, देन A क्रॉस 5 वही बताया था लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, A क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5. अगर दो सेट में कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट. ठीक है, नाउ A 1 2 क्रॉस सेट B 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5. ठीक है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, 1 2, तो इनका जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ये क्या हो गया 5 नथिंग इन कॉमन. तो जब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, दिस इज आल्सो बी 5. तो इसका एलएचएस निकल के आया 5. नाउ आरएचएस A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे A क्रॉस B. A सेट ये रहा, B रहा, मल्टीप्लाई कीजिए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 and 4, 4 2 are 8. तो 1 का करेंगे सभी के साथ, 1 1 1 2 1 3 1 4. अब 2 का करेंगे सभी के साथ, 2 1 2 2 2 3 2 4. ये क्या हो गया, A क्रॉस B. नाउ A क्रॉस C, A क्रॉस C, सेट A का क्रॉस करना है C के साथ. A में क्या है 1 2, C में है 5 6, तो 1 5 1 6 2 5 2 6 2 5 2 6. ये क्या है, A क्रॉस B, ये क्या है, A क्रॉस C. नाउ वी फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. क्या A क्रॉस B और A क्रॉस C में कोई भी कॉमन है, देखिए इसमें भी कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, नथिंग इन कॉमन, तो क्या हो गया, दिस इज आल्सो बी 5. ठीक है, नाउ वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS. Student, second part of this question is do yourself. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. Let A is equal to 1 2 B 3 4. Write A cross B. How many subset will A cross B? Question mark. List them.
हमें सेट ए दे रखा है, सेट बी गिवन है, राइट ए क्रॉस बी, हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे ये चीज बतानी है। फर्स्ट वी विल फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दैट इज 1 का दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद 2 का 3 4 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। वी फाइंड 1 3 1 4 2 3 and 2 4, ठीक है, ये क्या हो गया ए क्रॉस बी। नेक्स्ट हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं 1 2 3 4, कितना 4। द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते थे 2 to the power n, where n is the number of elements in a set। तो कितना होगा 2 to the power 4, 2 into 2 into 2 4 times equals to 60, ठीक है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 16। लिस्ट देम, उनकी वो लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो लिस्ट डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, let A and B be two sets such that number of elements in set A 3, number of elements in set B 2, if x1 y2 z1 are in A cross B। अगर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ऑर्डर पेयर हैं वो A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं, फाइंड A and B। Student, we know that first elements of order pair belongs to first set। तो क्या होगा x belongs to set A, y belongs to set A and z belongs to set A, and second elements of order pair belong to second set। 1 belongs to B, 2 belongs to B। 1 ऑलरेडी आ चुका है सेट में, नंबर्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। सेट ए कितना हो गया x y z, x y z, एंड सेट बी 1 2, ठीक है। और यहाँ पे गिवन भी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 1 2 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 1 2, ठीक है। ये क्या हो गया सेट ए एंड सेट बी। Last question of this exercise, question number 10. The Cartesian product of A cross A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and remaining element of A cross A. Students, given that number of elements in A cross A, number of elements A cross A is equal to 9 and -1 0 and 0 1 is order pair among A cross A, ठीक है। Then we find set A and remaining element of A cross A। So now we know that number of elements in A cross A is equal to NA cross NB, means number of elements in set A into number of elements in set B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एन ए क्रॉस ए, तो इसको लिखेंगे एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू एन ए इंटू एन ए, ठीक है। बट एन ए क्रॉस ए हमें गिवन है, तो 9 इज इक्वल टू कितना हो गया एन ए क्रॉस एन ए, देन एन ए इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। एन इंटू एन ए, आप ऐसा भी सकते हैं एन ए इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं लेट पी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पी इंटू पी, हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड पी इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो गया 3। फाइंड द सेट ए, ये चीज नहीं पूछ रहा है,
हमें सेट ए फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, तो इसका क्या मतलब हो गया, -1 बिलोंग्स टू सेट ए। एंड ये एलिमेंट्स, ये भी तो फर्स्ट एलिमेंट है 0, ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा। एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट, यानी कि सेकंड एलिमेंट क्या है 0, बिलोंग्स टू सेकंड सेट। और यहाँ पे सेकंड सेट क्या है, सेकंड सेट भी ए है। एंड 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो सेट ए क्या हो गया, -1 0 0 1। बट स्टूडेंट सेट में किसी भी नंबर्स का, एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम इसको डबल नहीं लेंगे। तो सेट ए क्या हो गया, -1 0 1, ठीक है। या फाइंड सेट ए, ये सेट ए फाइंड हो गया। एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट्स मींस इसमें से कुछ एलिमेंट्स मैंने दे रखे हैं, बाकी जो भी एलिमेंट्स ना वो मैं फाइंड करने हैं। Now we find A cross A. सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3, -1 0 1 क्रॉस A, -1 0 1। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, ए क्रॉस में कितने होंगे 9, जो कि हमें गिवन है। उनमें से हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 7, ठीक है। वो हमें फाइंड करने हैं। हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे। चलिए फाइंड करते हैं। -1 का -1 0 -1 1। अब 0 को करेंगे 0 -1 0 0 एंड 0 1। अब 1 का करेंगे 1 -1 1 0 1 1, ठीक है। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हो गए। बट हमें कौन कौन से एलिमेंट्स में गिवन थे, -1 0 ये में गिवन है, एंड 0 1 0 1 ये वाला एलिमेंट गिवन है। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो भी ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर हो गया। इनको छोड़ के ये जो 7 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है।